So let me share the screen. That's all. Fine. So what will happen if I convert the problem into the polar coordinates? Okay, so before we start the polar coordinates, let me just give a brief idea what is actually the polar coordinate. Polar coordinate is actually an equivalent system of Cartesian coordinate system where we can represent the same point system as we do for the Cartesian coordinate system. But in Cartesian coordinate system, what we have? We have a x-axis and a y-axis. Okay. And in polar coordinate system, we have simple, we call it as a polar line or initial line. And there is a vector which is called the radius vector. We represent it by small r, and the amount of angle it is creating with the initial line, it is called theta. So if I want to represent this point, so it is going to be called as r comma theta. So r is the distance from the pole. This point is pole. And theta is the angle from the initial line which is being created by the radius vector. So if I want to transform any point from Cartesian coordinate system to polar coordinate system, I need to use this transformation x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. So the same epsilon delta definition when you convert the function into polar coordinates becomes the same on the same pattern for every epsilon greater than 0. There exists delta greater than 0 such that mod of fr theta. So the same function which was earlier in xy, now it is in r theta minus L, if L is the limit, less than epsilon, whenever screen is not visible. Is it for all, for only few of them? It's visible. Just check your system. You will be able to see. Sumit. Okay, thank you. All right. So this and what was your this thing? Under root x minus. You were writing like this. X minus x naught whole square plus y minus y naught whole square less than delta. So if suppose this x naught happened to be 0, 0, then this condition would turn into under root x square plus y square less than delta, and then it can be written as mod r less than delta. So whenever mod r less than delta. So this definition is strictly for that case when you are evaluating the limit at 0, 0. Okay. So now what will happen if I convert the system into polar coordinates? Suppose if I got this problem, let's take an example. Fxy equals to 2xy upon x square plus y square. So we have seen that for the case of Cartesian system, the limit for this function at 0, 0, it do not exist. We can
confirm it by using the simple path test y equals to mx. Okay, so instead of this, let us convert this into polar coordinates. So what will happen? You will get f r comma theta equals to twice r square sine theta into cos theta divided by r square. R square cancelled out, and this came out to be sine 2 theta. Okay, so you might get confused here. Now if I take limit r comma theta tending to 0 comma 0 fr theta, which is basically here limit r comma theta tending to 0 0 sine 2 theta. So by just simple observation, one can write that this is equal to 0, but this is again a contradiction, because the same problem in Cartesian coordinate system, the limit was not existing, but when you converted into the polar system, now surprisingly you are getting limit 0. But this is wrong, this is not true. Why it is not true? Because whenever you are taking limit r comma theta tending to 0, it should come to a fixed value. Listen this thing very carefully. Whenever you are taking limit r comma theta tending to 0 comma 0, say here like this 0, it should come a fixed value along whatever theta you are approaching to 0. So if I take direction, suppose this is the pole, and by approaching the pole, this is the line theta equals to 0, and this is the line theta equals to pi by 4. This is the line theta equals to pi by 2, and this is the line theta equals to 3 pi by 2, and so on. So these are all the directions from which one can approach to the pole, which is 0 comma 0. So if you approach to this function along theta equal to 0, then only it is 0. But if you approach along theta equals to pi by 4, then this is sine 2 pi by 4, which is pi by 2, which is 1. And you keep on changing the direction, you will get different values. So in this way, this is actually not true, and the limit of this function is not existent. So what should one can do? Whenever you are trying to convert your function into polar coordinates, what you need to do, you write limit, suppose in general f or theta is the function, limit r comma theta tending to 0 0, this should come out to be L independent of choice of theta, then the limit will exist. Let me give you an example where the limit is existing. Suppose if I go with this limit f x y equals to x square y upon x square plus y square. So basically, if you convert them into polar coordinates, so what will happen? fxy, this will turn out into fr theta, then write equal to r square cos square theta into r sine theta divided by r square. So r square cancelled out, and what we got? We got r sine theta and cos square theta. Now if I take limit r comma theta
tending to 0, 0, fr theta. So this will be limit r comma theta tending to 0, 0, r sine theta into cos square theta, which is actually identically always 0. Whatever theta equals to alpha direction you choose to approach the pole, this is always going to 0. So this, in this case, the limit is existing, while in the previous case limit is not existing. So I hope the idea of polar coordinates, the evaluation of limits in polar coordinates is clear to you. Only you need to be careful that whenever you are evaluating r comma theta tending to 0 comma 0, it should give you a fixed value independent of the choice of theta. Now we'll talk about continuity. Continuity of function of two variables. So let us define like this. Let fxy be a function defined in a domain D which is contained in R2. Defined in a domain D which is contained in R2. All right. So let further, not let, then fxy will be continuous at a comma b if limit x comma y tending to a comma b fxy equals to f of ab. Now you recall the continuity definition for single variable. What was the scenario? Your LHL must be equal to RHL and it must be equal to the functional value at that point. Then you see the function is continuous. So same thing is here. If limit is existing, then LHL, RHL are actually same. So simply you can write limit xy tending to a comma b fxy equals to f of ab. And if I write the same definition in terms of epsilon delta, so for every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod of fxy, now in place of L simply replace f of ab, where we are checking the continuity, is less than epsilon whenever under root x minus a whole square plus y minus b whole square is less than delta. So there is not much difference between the definition of limits and continuity. Only replace L with f of AB in the definition of limits. It will turn into the definition of continuity. Okay. So
If I give you an example, like this, check the continuity of this function. Fxy equals to xy square upon x square plus y square. Okay, so we have already done this, and we know that limit xy tending to 0 comma 0 f of xy is actually 0, but it is not equal to f of 0 0. So check this condition. Limit x y tending to 0 0 fxy is 0, but it is not equal to f 0 0. So this is not continuous, at 0 comma 0. But if I modify the function fxy equals to xy square upon x square plus y square when x comma y is not equal to 0 comma 0, and 0 when x comma y equal to 0 comma 0, then what will happen? We define that f of 0 0 is 0. So in this case you can easily write limit xy tending to 0 0 fxy, this is equal to 0 and it is equal to f of 0 0. So this is a continuous function. All right, so that was the definition of continuity, and in your sheet you will find more exercise and examples where you can check and practice the more continuity exercises. Before I take the doubts, let me write one more uh, definition or concept, that is continuity of composite functions. Let fxy is continuous if fx comma y is continuous at x naught comma y naught, and g of x is a single variable function which is continuous at f x naught comma y naught, then GO of f, the composition of G and F, GO of f, which is G of f of xy, is also continuous at x naught comma y naught.
means composition of two continuous function is again a continuous function. So we can have examples like suppose you have a function sin x and xy square upon x square plus y square. We know both the functions are continuous, this sin x and this one, except at 0 0. This function is not continuous at 0 0, except at 0 0. But if you take the composition of these two functions, so it is going to be sine of xy square upon x square plus y square. So this is also going to be a continuous. Similarly, e to the power x and x minus y both are continuous, so their composition e to the power x minus y is also continuous. So we can use this result to actually conclude the continuity of composition of two continuous functions. That was about continuity. Now I'll take queries. Please raise your hands. Yes, Vaibhav. हिमांशु सर ये कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में आपने व्हिच इज कंटीन्यूअस एट f of x naught y naught होगा, सिर्फ एक वो पॉइंट ही होगा वो? नहीं, जो लिखा है वो सही लिखा है. आप ये देखो कि जो f of x naught y naught होगा वो क्या होगा, इट विल बी ए नंबर ओनली. यस सर. मतलब f of x, f कहां से कहां डिफाइंड है, R2 से R में. तो f of x naught y naught तो इस तरीके से होगा, आपका R2 होगा, देन R होगा, देन एक और R होगा. इससे बीच में f डिफाइंड है और यहां से यहां g डिफाइंड है. ओके, और FOG पूरा कंप्लीट यहां से यहां डिफाइंड है. तो अब g जो डिफाइंड होगा वो f की किसी इमेज पे ही तो डिफाइंड होगा. यस सर. ओके, और f की इमेज कैसी होगी, f of x naught y naught. ठीक है, ठीक है सर. ओके. मनप्रीत. बोलिए सर. पेज नंबर 33 पे. हाँ बताइए सर. ये r से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए जीरो पुट किया है. r जीरो पुट करेंगे, इसलिए जीरो पुट किया है, क्योंकि अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा जीरो होगा, तभी ये जीरो. यस सर. ईशा. So on page 34, sir, I didn't understand the last question. Basically, slide 34. हाँ. So the last part. So below लास्ट पार्ट में क्या करना है, पहले sir, हमने फंक्शन डिफाइन किया fxy इक्वल्स टू xy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, इसकी लिमिट हम पहले भी निकाल चुके हैं, इसकी लिमिट 0 आती है. ठीक है. yes sir. बट इस ये फंक्शन 0 0 पे डिफाइंड नहीं है. अगर 0 0 पे आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड. तो इसकी लिमिट तो 0 है, बट ये f ऑफ 0 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है. फिर हमने इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया, इसको 0 0 पे डिफाइन किया, एंड वी डिफाइंड दैट कि ये फंक्शन नॉन जीरो एंट्रीज पे xy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है और 0 0 पे 0 है. अब ये इसकी लिमिट तो अभी भी 0 रहेगी, बट नाउ इट इज इक्वल टू f ऑफ 0 0. तो अब ये कंटिन्यूअस हो गया. Sir, but sir, in class 12 we learned that we check the continuity of the function in the domain of the function. So basically at 0, 0 this function won't be defined. So why do we talk about continuity at 0, 0? नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है आपका फंक्शन कहीं पे डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन वहां पे उसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी. लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही सकती है. ओके,
फंक्शन डिफाइंड हो चाहे ना हो, बट उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। और बट यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि एक फंक्शन था जो जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी बट वो कंटिन्यूअस नहीं था, और उसी फंक्शन को फिर हमने मॉडिफाई किया, उसको 0 0 पे डिफाइन किया, एंड नाउ इट इज कंटिन्यूअस एज वेल। Yes, sir, I got it. संतोष, सर सर पेज नंबर 32 सर। 32। यस सर। हाँ बताइए। Sir, in this, the function only depend upon the theta, sir. Last Sorry one, sir. again. Function depend upon the only theta, sir. Sin theta. Yes. Yes. That means R is fixed, sir. R is not available there. It's like R is not part of the function. Then then can we say it is a single variable function? Yeah, you can say it's in this current form, it's a single variable. Now then sin theta taken as 0.001 degrees and theta taken at minus 0.001 degrees, sir. LHL arch, sir. I suppose to take. It's not like sin 2x. Okay. Don't confuse this sin 2 theta with sin 2x. अगर sin 2x है, then sin 2x की limit 0 पे 0 है. No. But this is not sin 2x. This is sin 2 theta. We won't be able. Theta as, sir, I take theta as 0.001 degrees, sir. Okay. RHL, LHL I take, sir. But RHL, LHL theory is not applicable here because we don't have only RHL and LHL. Here RHL means theta equal to 0 and LHL means theta equals to pi. Why, sir? Because again your domain is this function becomes function of one variable, that's another thing. But your domain of the function remains a plane. जिसमें कि आपका you have an origin and you need to approach this origin from all the directions, not only from left hand and right hand. So that is why I said you should not take this function as sin 2x. This is sin 2 theta. So one variable already fixed, sir. R is also fixed, sir. R is not fixed. It is just absent in the function. R is not fixed. I have nowhere fixed the R. Just luckily R is got annihilated from the function. R is not independent of the R, sir. It is, yeah, you can say it is right now independent of R. That's true. Then it is a single variable function, sir. But it doesn't mean it completely becomes the function of single variable, because R is not depending. This function is not depending on R. It means R can have any value. R is not fixed. R can have any value. This is what you should mean. You can understand by this example. Just let me know what is the geometry of this curve. X square plus y square equals to 1. What is this? Circle, sir. This is circle. And if I ask you how it will look like if I see the same equation in 3D. Sir? If I ask you to tell me the geometry of this same expression in 3D, it is circle in 2D only. But if I ask you in 3D how it will look like, it will be a cylinder. Okay, because in x square plus y square equal to 1, if you try to see in 3 dimension, z is absent here. So it means z can have any value from negative infinity to positive infinity. So it's not circle. In 3D it's a cylinder. So same thing is happening here. So you cannot take this whole thing in 3D as a circle only. It will become a cylinder. The same thing is here as well.
R is just got deleted from the function. It is independent of R. It doesn't mean R is fixed or R is we have put some constant. Okay. Okay, sir. Just think of this elaboration. Amritdeep. तो जैसे आपने अगले एग्जांपल में जैसे r इंटू साइन का वो फंक्शन आ गया सर, तो उसमें हमें एप्सिलॉन डेल्टा लगाने की जरूरत तो नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। किस क्वेश्चन में? सर इससे अगला पेज 33 पेज, जो वहां पर हमारे साथ आ गया कि r साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सर, तो उसकी हाँ। लिमिट 0 आ गई। तो सर हमें अब एप्सिलॉन डेल्टा तो नहीं चेक करना पड़ेगा ना, तो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि करना पड़ सकता है। सपोज नीचे से डिनोमिनेटर में से R अगर ना खत्म होता, सपोज कुछ ऐसा आ जाए R+1 साइन थीटा अपॉन R। अब तो इसमें आप लिमिट R कॉमा थीटा टेंडिंग टू 0 0 लगाएंगे तो 0 नहीं होगा, इट विल बिकम 0/0 टाइप। तो यहाँ पे फिर आपको एप्सिलॉन डेल्टा ही यूज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन कंक्लूड एनीथिंग। ओके। सर जो इस एग्जांपल में लकीली बहुत फेवरेबल सिचुएशन आ गई, बट हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो इसमें अब एप्सिलॉन डेल्टा की जरूरत नहीं है ना वैसे। नहीं, अब हम कह ही जैसे सकते हैं ना एग्जांपल इस एग्जांपल नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लिमिट निकालो तो आप क्या बताओगे? R कॉमा थीटा टेंडिंग टू 0,0, इसकी लिमिट कैसे आप निकालोगे? सर इसकी तो फिर क्योंकि थीटा पे भी डिपेंड करेगा सर, तो इनफिनिट भी हो सकती है सर, क्योंकि r साइन थीटा बाय r हो जाएगा, तो सर r इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब फंक्शन। नहीं तो फिर क्या होगा? मतलब व्हाट शुड बी द लिमिट? आप तो कह रहे हो ना कि हमें एप्सिलॉन डेल्टा की जरूरत नहीं है, तो मतलब हाउ सर मैं विदाउट इस एग्जांपल में कह रहा था सर, पिछली वाली में जो r साइन थीटा इंटू कॉस जिस एग्जांपल में नहीं, जिस एग्जांपल में आप डायरेक्टली निकाल सकते हो तो वो काम तो आप कार्टेशियन में भी कर सकते हो। जिस एग्जांपल में एक्स वाई आप डायरेक्टली पुट करो और आपको लिमिट निकल के आ रही है, देन यू डोंट नीड एप्सिलॉन डेल्टा देयर एज वेल। सर वेरीफाई करने के लिए सर, जैसे हम यूज करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा। नहीं बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक्स वाई में भी आपका फंक्शन है और लिमिट एक्स वाई की वैल्यू उसमें पुट करने पे अगर डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल रही है लिमिट की, तो वहां वेरिफिकेशन जैसा कुछ नहीं रह जाता है। इट्स कंक्लूजन की इसकी लिमिट यही है। अब साइलेंट डेल्टा तो हम तब यूज कर रहे हैं ना जब हमें डायरेक्टली उसकी लिमिट ही नहीं पता चल रही है, जैसा कि ये केस है। जब आपका फंक्शन इस फॉर्म में है देन यू नीड एप्सिलॉन डेल्टा। बट अगर आपका फंक्शन इस तरीके का है x² + 1 अपॉन x² - 1, आप यहाँ पे y² भी जोड़ लो, इस तरीके का। अब इसमें आपको एप्सिलॉन डेल्टा लगाने की जरूरत थोड़ी है। लिमिट x, y टेंडिंग टू 0,0, आप 0 0 सीधे पुट करो, 0+1 अपॉन 0 - 1, इसकी वैल्यू -1 आ गई। We do not need epsilon delta. We do not need any verification for this solution. Okay? ओके ओके सर। सर तो अगर हम जैसे y को अगर mx डाल y इक्वल्स टू mx यूज करें इक्वेशन, जो x² y अपॉन x² + y² में, उसमें भी अगर हमारा जो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो m के इंडिपेंडेंट आ जाए और सिर्फ तो x वो पे एक डिपेंड गेस करे। वो एक गेस है लिमिट का, इट्स नॉट कंक्लूजन। ओके, सपोज आपने y = mx पुट किया और m के इंडिपेंडेंट आ गया और सपोज 0 आ गया, तो इट्स नॉट कंफर्म दैट उसकी लिमिट 0 होगी, देन यू नीड टू प्रूव इट बाय एप्सिलॉन डेल्टा। बट सर अगर लेकिन विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग एनी पाथ आपका डायरेक्टली इवेलुएट हो रहा है, देन इट्स कंफर्म्ड। सर लेकिन उसमें भी तो जैसे y इक्वल्स टू mx है, तो सर m की अलग अलग वैल्यू से हर पाथ कवर हो जाएगा ना उस पॉइंट पे रीच करने के लिए। अरे यार, ये बात मैं कितनी बार आप लोगों को समझाई। m से y = mx से हर पाथ कैसे कवर हो जाएगा? ये वाला पाथ आप y = mx से कैसे कवर करोगे बताओ? सर जैसे ये वाला पाथ y = mx से कैसे कवर होगा? ये वाला पाथ y = mx से कैसे कवर होगा? बताइए।
तो जैसे कि अगर हर एक पाथ तो है जो सर वो पॉइंट से ही बनेगा ना, एक जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो अलग अलग पॉइंट ही होंगे छोटे आप छोटे। मुझे ये तो सर बताओ कि मैं लिसन टू मी, यू आर अननेसेसरी कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। जो ये कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये y इक्वल्स टू mx से आपको कैसे मिलेगा? ये भी तो एक पाथ है ना जो 0 0 पे पहुंच रहा है। इसको y इक्वल्स टू mx से कैसे हम पा सकते हैं, बताइए। Can we do it? Means can we achieve this equation of this curve using any y equals to mx? Say yes or no. Then how you are saying y equals to mx is covering all the paths? ठीक है सर। ओके, समझ गए? उज्जवल हेलो बताइए। सर, जो एप्सिलॉन और डेल्टा में जो रिलेशन निकालते हैं वो लिमिट हाँ एग्जिस्ट जी। करे तभी निकाले या फिर एग्जिस्ट नहीं करे तब भी नहीं कर सकता है? नहीं, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर आप कैसे, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसको प्रूफ कैसे करोगे आप? और सर आई अभी समझ में आपने बात? बताया कि y इक्वल टू एम एक्स से अगर कोई डिफाइन हो जाए कि एग्जिस्ट करे तो वो जरूरी थोड़ा ना कि वो उसी से डिफाइन हो ही और वो पास से हो या ना हो। y इक्वल्स टू mx से या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा या तो आपको लिमिट का सिर्फ गेस मिलेगा कि ये लिमिट हो सकती है, सर उससे अगर एग्जिस्टेंस। गैस मिल जाए कि होगी तो वो जरूरी है क्या होगी? नहीं, जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। आप होगी या नहीं होगी वो आप साइलेंट डेल्टा यूज करके ही पता चलेगा। ओके। And Ujjwal, I saw your attendance. You are filling only few entries in your roll number, right? Full your roll number. Otherwise, you may be marked as absent because I won't be checking each and every data. Okay, and make sure you write roll number at the place of roll number and your name at the place of name. You have done this mistake many times. Jaskirat, सर वो जो आपने कहा था ना कि जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ थीटा, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है ना। if L की जो वैल्यू है which is independent of choice of theta, yes. हाँ, अगर आर कॉमा थीटा मतलब अगर मैं एक्स कॉमा वाई में बात करूं तो वो जीरो, वो ओरिजिन नहीं है, वो कोई और पॉइंट है जिसमें एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट जिसमें कोई कोई एक नॉन जीरो है। तो फिर हमें कोई जरूरत नहीं है, थीटा तो फिक्स ही होगा, सिर्फ 0,0 के लिए थीटा फिक्स नहीं है ना सर? नहीं, 0,0 नहीं, फॉर एनी वैल्यू आप जो है अल्टीमेटली पोलर में कोई भी पॉइंट जब एक्सप्रेस करोगे तो आप जो है बेसिकली मोस्ट ऑफ द एग्जांपल फॉर आर एंड थीटा वी डू फॉर 0,0, बट जरूरी नहीं है, हमारा 1,π/4 भी हो सकता है। हाँ तो उसमें तो थीटा वैसे ही फिक्स्ड है सर, तो उसमें थीटा नहीं क्यों नहीं वेरिएबल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं मतलब इसका। 1,π/4 को वी नीड टू लोकेट इन द पोलर सिस्टम। 1,π/4 पॉइंट होगा क्या? अच्छा ये आपकी इनिशियल लाइन हो गई और ये थीटा इक्वल्स टू π/4 लाइन हो गई, और सपोज ये 1 यूनिट है तो ये पॉइंट 1,π/4 हुआ ना। हाँ जी हाँ जी। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए तो थीटा की सारी डायरेक्शंस अगेन अवेलेबल है ना, जस्ट आपने ओ, 0 0 को स्केल करके 1,π/4 पे ले गए। हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं ठीक है, समझना है कि अब थीटा फिक्स हो गया, ऐसे तो यहां पे भी थीटा 0 फिक्स नहीं हुआ फिर। पर जब हम ओके। थीटा अप्रोच कर पर जब हम थीटा अप्रोच कर रहे हैं तो वो तो यहाँ हाँ, जब हम π/4 पे पहुंच गए तो वो π/4 प्लस एच और π/4 माइनस एच ही होगा ना? नहीं, π/4 प्लस एच π/4 माइनस एच तो आपका उस केस में है जब आपका फंक्शन 1 डायमेंशनल है। अच्छा ओके, ठीक है बट ठीक है। यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल है ना। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये तो तब होता जब यू आर वर्किंग ऑन अ लाइन कि ये वैल्यू π/4 है, ये π/4 प्लस एच हो गया, π/4 माइनस एच हो गया, बट यू आर नॉट ऑन अ लाइन, यू आर इन अ प्लेन। हाँ जी बिल्कुल। अब इस 1,π/4 पे आपको अप्रोच करने के लिए यू हैव मल्टीपल डायरेक्शंस, और हर हाँ एक जी डायरेक्शन जो होगी वो एक
थीटा की लाइन होगी 0 ठीक पाई है बाय 4 पाई बाय 2, तो अगर फ्रॉम दैट एंगल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, देन दैट लिमिट इज एग्जिस्टिंग। ठीक है ओके, ठीक है ठीक है। और सर वो सॉरी वो दोबारा वो वाला डाउट मैं दोबारा कर रहा हूँ। वो जो अभी उसने पूछा ना कि वो जो डायरेक्शंस की बात y इज इक्वल टू एम हाँ एक्स, हाँ तो हाँ हम लिमिट कोई भी मान लो कोई पैराबोलॉइड है जैसे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ हाँ उसके एक ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर हम लिमिट कहते हैं एग्जिस्ट करती है, तो उसका मतलब ये होता है ना कि उसकी विसिनिटी में जो सर्कल के जो सारे पॉइंट्स हैं, उसकी बिल्कुल विसिनिटी जो ए मतलब उसके एच रेडियस पे ही, तो वो सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं सरफेस पे। सरफेस पे। हाँ जी हाँ जी। नहीं, लिमिट का मतलब ये है, अगर आप पैराबोलॉइड की बात करो तो आपका पैराबोलॉइड ये हो गया, ये इस तरीके का बनेगा z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी सर। तो अगर सपोज इस पॉइंट पे आप लिमिट की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब इसके टॉप ऑफ द, मतलब इस पॉइंट के जस्ट सपोज a कॉमा b पे हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो a हाँ जी कॉमा सर। b के जस्ट ऊपर आप जाओ, जो सरफेस पे पॉइंट मिलेगा हाँ जी सर। वो उस आपका l हो गया ना, दिस हाँ जी बिकम्स l। हाँ अब जी सेम थ्योरी लगानी है जो हमने अभी तक समझी हुई है। अगर वही मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हाँ जी whenever under root x minus a y minus b whole square less than delta exists, सेम थ्योरी लगानी है, यही हाँ मतलब जी है, दूसरा कोई। हाँ जी हाँ जी। नहीं वो तो एक फॉर्मल डेफिनेशन होगी ना, नहीं तो हम लिमिट तो ये कहते हैं ना कि वो वहाँ पे लिमिट मतलब कि वहाँ पे उसकी वैल्यूज हैं आसपास, है ना, वो वही वैल्यूज हैं हाँ उसके विसिनिटी एग्जैक्टली, में। मतलब ये यहाँ पे सरफेस फिल्ड होनी चाहिए, यहाँ पे गैप नहीं हाँ होना चाहिए, अगर हाँ जी ज्योमेट्रिकली बिल्कुल हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ सर यहाँ कि यहाँ पे ये पूरी वैल्यूज इसके नेबरहुड में फिल्ड होनी चाहिए। अगर गैप होगा तो ये फंक्शन की लिमिट में भी यहाँ एग्जिस्ट ना करे। हाँ जी वो वही कह रहा हूँ कि यही अगर तो वो फील्ड, यही डिसकंटिन्यूटी बनता है जाके। हाँ जी बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो गैप नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो सारी डायरेक्शन से कवर होना चाहिए वो वाला पॉइंट, है ना। कह सकते हो आप, है मतलब ना सारी फील्ड होना चाहिए, जैसे जैसे आप किसी टेंट हाउस के नीचे बैठे हो तो उस टेंट में कोई होल नहीं होना चाहिए। हाँ जी। नहीं होल होगा तो उसको उस होल पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना, वो कंटिन्यूटी नहीं होगी लेकिन उस होल पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना अगर उसके आसपास सारा फील्ड है। नहीं, डिपेंड करता है वो होल कितना बड़ा है। अगर उस हाँ नहीं पॉइंट पे मैं वैल्यू ही नहीं हाँ डिफाइंड है तो लिमिट भी हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। बट हाँ अगर आपकी बहुत ही फाइन ऐसा है कि सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर है कि हाँ सिर्फ इसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, हाँ तो जी हाँ आपका जी एलएचएल आरएचएल तो एग्जिस्ट करता ही था, जैसे वो हाँ एग्जिस्ट जी करता है वैसे ये एग्जिस्ट करेगा। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट पे ही सिर्फ होल है, एक पॉइंट पे उसके आसपास अगर सारा कुछ फील्ड है, तो हम कहेंगे ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ एग्जाम्पल जी तो हमने किया ना, जो ये एग्जाम्पल लिख रखा है, ये वही तो एग्जाम्पल है। इसको अगर हाँ आप जी ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करो तो इस पे 0,0 पे होल है, 0,0 पे फंक्शन ये डिफाइंड नहीं है, बट हाँ इसकी जी लिमिट तो बिल्कुल। एग्जिस्ट कर रही है ना। हाँ जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स, वो सारी पाथ की बात नहीं कर रहा सर, हमने ये देखना है कि सारी डायरेक्शन मतलब आपने यही हमें बताया कि हम सारी डायरेक्शंस में देखेंगे कि सारी डायरेक्शन में उसके आसपास पॉइंट्स वही उसके आसपास के एग्जिस्ट करते हैं, वो फील्ड है उसके आसपास। तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स सारी डायरेक्शंस कवर कर रहा है, तो उसके आसपास के सारे पॉइंट्स फील्ड हैं, सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स एक फिक्स्ड वैल्यू आ रही है, तो नहीं यानी नहीं कि नहीं, सारे यू आर मिसिंग द कॉन्सेप्ट। जो आपका y इक्वल टू एम एक्स लाइन है वो डोमेन में है ना, स्पेस में नहीं है। मीन्स इट इज नॉट ऑन द टेंट। y इक्वल्स टू mx लाइन तो हमेशा इस प्लेन में है, xy में। हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द सरफेस ऑफ द फंक्शन? हाँ वो आर यू तो z गेटिंग? की इंडिपेंडेंट ऑफ z है ना, तो नहीं, y इक्वल्स टू mx जो लाइन है वो हमेशा डोमेन में है। तो डोमेन में है तो इसका फंक्शन की सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। ओके, आप इससे मत कंफ्यूज हो ना। जो एकदम इंपॉर्टेंट बात जिसपे मैंने फोकस किया था पिछले कुछ लेक्चर से, वो ये है कि आप सिंपली पकड़ो कि एलएचएल और आरएचएल इक्वल होने चाहिए, और हाँ जैसे ही जी हम टू वेरिएबल के केस में जाते हैं, ये नंबर ऑफ एलएचएल एंड आरएचएल इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो आप इससे मत कंफ्यूज हो कि अगर मैंने y इक्वल्स टू mx ले लिया तो ये लाइंस तो पूरे प्लेन को कवर कर लेंगे। प्लेन कवर नहीं करना हमको, प्लेन कवर करना अच्छा इज नॉट सफिशिएंट।
ये तो एक क्लास की LHL RHL हो गई ना, ऐसे ही हजारों क्लास के LHL RHL हैं, वो सारे भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो दैट इज हाँ वाई इस टाइप का जो पाथ होगा वो y इक्वल्स टू mx में नहीं इंक्लूडेड है। तो हम सिर्फ y इक्वल्स टू mx से नहीं कंक्लूड कर सकते हैं। ये y इक्वल्स टू mx पूरे डोमेन को कवर कर लेता है, उससे हमें कोई, उससे कुछ नहीं पता चलता है। इट टेल्स अस नथिंग। मतलब आप ये मत सोचो कि y इक्वल्स टू mx हम ले रहे हैं तो वो पूरा डोमेन को कवर कर ले रहा है, तो ऊपर सरफेस पे भी सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज अच्छा इलॉजिकल थॉट, इसमें कोई कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, हर्षिता। Yes, sir. I wanted to ask whether this polar coordinate system, sir, do we get questions on it or is it just for our knowledge? No, whatever I am teaching and covering, it can come to your examination or your quizzes everywhere. It's not for only knowledge. You should know it. So, sir, how do we know from which direction? Means, sir, how to differentiate कि different direction से आ रहा है तो it will have a different answer. ये यहाँ से आपको पता चलता है ना, जैसे ये फंक्शन है आपका, इसके पहले वाला एग्जांपल कहाँ गया? जैसे ये फंक्शन आया है ना, लिमिट r कॉमा थीटा थीटा टेंडिंग टू 0 r 0 0। तो अब आपको साइन 2 थीटा मिला। जैसे ही साइन 2 थीटा मिल रहा है, अगर आप थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 डायरेक्शन से आओगे तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इनसाइड दिस फंक्शन, आपको 1 मिल जाएगा साइन साइन पाई बाई 2। आप थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 डायरेक्शन से आओगे, इस डायरेक्शन का मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू 0 इज दिस लाइन, this is theta equal to 0, this is theta equals to pi by 4, this is theta equal to pi by 2, this is theta equal to 3 pi by 2। ऐसे आपकी इनफाइनाइटली मेनी मींस जो y इक्वल्स टू mx लाइन है उसी का पोलर में इक्वेशन ये है थीटा इक्वल टू अल्फा। क्योंकि y इक्वल टू mx आप कैसे लिखते हो, y इक्वल्स टू mx, y अपॉन x इक्वल्स टू m, y और x की वैल्यू रख दो तो आपको क्या मिलेगा, y equals to r cos theta, x y equals to r sin theta। तो what you will get, you will get tan theta equal to m। तो theta equal to tan inverse m। तो ये theta equal to tan inverse m ही तो सारी लाइंस हैं। तो you keep on choosing different theta equal to 0 pi by 4 pi by 2। तो आप जब इसमें रखोगे तो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी, वहां से आपको पता चल जाएगा इट इज नॉट यूनिक। तो जैसे इसमें तो अलग वैल्यू आ गई तो हमें पता चल गया, बट सर नेक्स्ट वाले में कैसे पता कि 0 ही है उसका आंसर? नेक्स्ट वाले में ऐसे पता है कि अब यहाँ पे जैसे दो कंपोनेंट हैं इसके, एक तो r में है एक थीटा में है, r इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की चाहे जो डायरेक्शन लो, साइन थीटा कॉस थीटा आपका 0 भी हो सकता है नॉन 0 भी हो सकता है, बट r टेंडिंग टू 0 बिकॉज r इज अवेलेबल हियर, क्योंकि पिछले वाले केस में r मिसिंग था। अब due to the presence of r, this is always going to be 0. It will not give any another value, whether you choose theta equal to 0, pi by 4, pi by 2, 3 pi by 2, whatever. पर सर Okay? जैसे साइन 0 0 तो फिर 0 इंटू 0 आ जाएगा ना उसमें? Sin 0 0 है, हाँ 0 into 0 0 हो जाएगा, then what's the problem? ओके सर। Just think about it again. I'm sure I think you are still not clear. Think about it again, then you can ask me again. Ranjan. सर आज की फर्स्ट वाली जो स्लाइड दिखाइएगा सर। आपको फोटो खींचना है? सर ये थी सर इसके बैक वाली सर, यहाँ पे सर ये थी सर, ये वहाँ पे ये सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 के बाद क्या लिखे, एंड प्लस लिखे हैं सर। कहाँ पे? सच दैट, शॉर्ट फॉर्म लिखा है s डॉट t डॉट, सच दैट। ओ सच दैट लिखे। मुझे
ओके ओके सर, थैंक यू सर। आज रिंकू पहली क्वेश्चन कौन सी कराई थी आज? यहीं से स्टार्ट की, इसके पहले भी कुछ था? यहीं से शुरू किया। सर पीछे इसके पिछले वाली स्लाइड में कोई क्वेश्चन दिख रहा है? वो ट्यूटोरियल का क्वेश्चन है, आपके बैच का हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है ओके सर। रिंकू। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो हमने x, y को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, ये हम सिर्फ 0,0 के लिए करेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं? किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए आप कर सकते हो, बट फॉर ईज नहीं ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव डिड फॉर 0,0, बट ये नहीं किसी मतलब भी कोऑर्डिनेट तो नहीं, लिमिट में यूज करने के लिए आप किसी भी कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर सकते हैं ना जब किसी भी कोऑर्डिनेट मतलब जैसे यहाँ पे तो हमने x, y 0,0 लिया था लिमिट में, अगर यही जो सेम फंक्शन है fx, y में अगर हम लिमिट चेक करते 1,2 पे, तो उसको भी हम पोलर कोऑर्डिनेट में से लेके कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। उस केस में क्या होगा कि r, थीटा 0,0 पे नहीं जाएगा, ये किसी और पॉइंट पे जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। और सर, और ये जो वो एक लाइन लिखवाई थी कि इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ थीटा, तो वो सिर्फ 0,0 के लिए है कि वो सभी के लिए वैलिड होगा, कोई भी थीटा के लिए? किसी भी पॉइंट के लिए। अभी एक बच्चे ने पूछा भी था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर सपोज वो 0,0 ना होके यहाँ पे ही है 1,π/4 है, तो r टेंडिंग टू 1, थीटा टेंडिंग टू π/4, तो अब यहाँ पे π/4 पे किसी भी डायरेक्शन से हम पहुंचते हैं थीटा की, इट शुड बी द सेम, मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ थीटा है, इट इज वैलिड फॉर ऑल द पॉइंट्स, नॉट ओनली एट 0,0। ओके सर, ओके सर, यस सर। हर्षदीप। तो 33 पे जो आपने ये एग्जांपल नहीं दी थी, लिमिट r+1 sin थीटा बाय r, हाँ बताइए। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिख दिया था, आप बताओ, आप आगे सॉल्व करो, कैसे करेंगे? पूछ रहे हैं सर, वही डाउट है, मतलब अब अगर हम यहीं पर आगे तो ये आपको इसमें एप्सिलॉन डेल्टा ही पहले गेस करना पड़ेगा, इसकी लिमिट क्या हो सकती है, और देन यू कैन once you find out L, then use the epsilon delta। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको कोई फंक्शन दूंगा आप इंटीग्रेट कर ही लोगे। द सेम थिंग इज हियर एज वेल, वी आर लर्निंग द इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, बट समटाइम्स इट मे बी इजी, समटाइम्स इट मे बी वेरी हार्ड, कि आपको दो उसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती हो बट यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट। ठीक है, बट तरीका यही है, मतलब यहाँ पर भी y = mx जैसे ऐसे ही भर लेंगे, r = x थीटा कुछ भी। हाँ पहले आप गेस करो, या आप चाहे इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, जिसमें भी इजी लगे, पहले गेस करो, फिर उस गेस को प्रूव या डिसप्रूव करो। थैंक यू। दिव्यांश। सर एप्सिलॉन डेल्टा निकालने के लिए सर हम पहले सब लोग रिपीटेड लिमिट यूज कर सकते हैं एल के लिए सर? हाँ आप रिपीटेड लिमिट यूज कर लो, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो दैट इज अ गेस फॉर कैपिटल एल। यस सर। और सर आपने जो शीट दी थी सर, उसमें सर 6 क्वेश्चन सर देख रहे थे, उसमें x0 y0 के लिए बताया है कि प्रूफ करना है सर, उसके लिए हम लोग को पाथ देखेंगे तो पाथ कैसे पता करेंगे सर x0 y0 के लिए? पहले मुझे 6 क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना, है क्या 6 क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था, आप पढ़ो जरा, फिर मैं बताता हूँ। इन द मीन टाइम आपने आई एम ओपनिंग। सर है सर प्रूव और डिसप्रूव दैट लिमिट सर लिए सर x y टेंडिंग टू x0 y0, और सर फंक्शन है x⁴ प्लस y⁸ 8 अपॉन x² y²। एक मिनट में ओपनिंग कर लेता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन, ओके, प्रूव और डिसप्रूव। ओके, आप इसको 0,0 कर लो, x0 y0 पे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पर सर अच्छा, जैसे x0 y0 है, हम लोग उसका पाथ तो बताएं, मतलब वो निकाल तो सकते नहीं सर पाथ वाले फॉर्म से?
नहीं, इन जनरल अगर आप x नॉट वाई जीरो x नॉट वाई नॉट ही है, फिर आपका पाथ भी x नॉट वाई नॉट के टर्म में ही आएगा, जैसे लाइन पासिंग थ्रू x नॉट कॉमा वाई नॉट। बट अगर आप x नॉट वाई नॉट ही लेके चलोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसको 0 0 करके कर लो, नो इशू। और सर इसी में सर ऊपर से एग्जांपल 6 है सर, उसमें सर कुछ दिया नहीं है सर। और इसमें आपको वेरीफाई, ये एग्जांपल तो मैंने आपको लेक्चर में करवाया था, कल के नोट्स देखना, उसमें है। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। Okay, then that's all for today. See you next week. And before I leave, next Monday we are going to have another quiz. Okay, it may be MCQ, multiple choice question. Syllabus for the quiz. Sorry, Sir, syllabus. सिलेबस जितना कराया सब पूरा सिलेबस है।